Good afternoon, students. Again, we are here to discuss few concepts of Python functions. As we have learned so many PPTs, we have seen so many PPTs and videos. Here I have mentioned here 6 concepts in this tutorial. Hope all will understand these tutorials and also try to understand these concepts. If you are taking interest, also take interest in coding. Um, if you are taking interest in coding, then certainly you will get good marks and good understanding and good interest in programming. Okay, so my best wishes are with you, and I always try to clear some concepts or doubts to coding uh, where there are some doubts or concepts are there. Then I always prepare a video for that and tries to clear your doubts. Okay. Our first concept is local versus global variable. Okay, we are seeing the when we have same type of variable. Here is a 10, it's a global variable, and here is declared here, it's a local variable, and there will be confusion when we want to print local variable and when another time we want to print a global variable. So what will be the difference in printing these variables? That's a concept, globals. When we write like this globals and mentioning the variable, it will print the global variable value. And when we are printing the variable values with single without global, then it will print the values of local. Just see this example. A is equal to 10, b is equal to 5, and we are calling function fun a is equal to 10 and 10 in plus 10 plus that is equal to 20, but its value is local. And global b is equal to b plus 10. Here we have not mentioned any values of b. Its value is b, but in function we are not mentioning any value of b. So starting b value is 0, not 5, and b is equal to b plus 5, that is a 15. We are printing local variable a. Local variable is equal to 10 plus 10, 20, and global a. Global is this one is global variable. So its value, first value will be 20 and second value will be 10, and we are printing value of b. B value was 0. 0 plus 10, that is a 10, and we are coming out from the function, and value after coming out we are printing value of a. A value was 10. It was changed, but it was not made global there, so its value will be 10. So its output will be 10, and the value of b after calling b was made global, and b value was b is equal to b plus 10. So starting value was b was equal to uh, 0, and b plus 10, that is equal to 10. Let's see these output here. 20 local variable, and the second value is globals, that is a 10, and again 15 after function out, that is a 10, and value of b was made global, and its value was in the second it was 10 because no value was taken, but b was made global with the single name, and global variable can change values. So after coming out from the function, when we are printing value of b, it will display here 15. Okay, next, second concept is function argument without unpacking. Unpacking means we are mentioning list, all type of list here, list, string. We don't we are not mentioning a single variable in which we have to unpack all the elements of the single variable. We are mentioning the whole values. Okay, तो यहाँ पर जैसे कि लिस्ट मेंशन की गई है, यहाँ पे स्ट्रिंग करनी गई है, तो इनको अनपैक करने की जरूरत नहीं है. सिंपल हम फंक्शन c1 किया, c1 में हमने ये लिस्ट को पास आउट किया. लिस्ट को पास आउट करने से क्या हो रहा है कि ये लेंथ ऑफ सी दैट इज 0 से, और इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से 7 तक चलेगा हाई रेंज, और ये वैल्यूज को प्रिंट कर देगा. तो इसका फर्स्ट आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और जब हम c2 करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा KENDRIY है. ठीक है,
तो इस तरीके से ये अनपैकिंग है, जिसमें हम सिंगल एक लिस्ट को मेंशन कर रहे हैं और स्ट्रिंग को मेंशन कर रहे हैं। तो लिस्ट और स्ट्रिंग दोनों मेंशन कर रहे हैं, तो उसको सिंपली वैल्यूज प्रिंट हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, कंसेप्ट है अनपैकिंग का। तो वो अभी हम इसके बाद सेकंड वाला कंसेप्ट देखते हैं। जैसे हमने देखा, तो ये देखिए इसने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और केंद्रीय है। सेकंड कंसेप्ट है अनपैकिंग वाला। ये तो इसमें तो सिंपल था, इसके अंदर तो फंक्शंस हम जैसे यूज करते हैं सिंपली वैसे ही यूज किया गया था। हाँ, ये बात है कि इसमें लिस्ट और स्ट्रिंग यूज की गई। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल और लिस्ट इज ए म्यूटेबल। तो अगर यहाँ पर अगर हम लिस्ट की कोई वैल्यू चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हमें दोबारा से अगर हम C1 प्रिंट कराते हैं तो हमें चेंज वैल्यू मिलती। लेकिन स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, तो यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं होती। इसके बाद अनपैकिंग। अनपैकिंग में देखिए क्या है कि यहाँ पर आपने लिस्ट सिंपल ऐसे नहीं दी है कि जैसे आपने C1 एक लिस्ट बनाई थी और 1 2 3 दिया था, आपने यहाँ पे स्टार लगाया है। स्टार इज ए पॉइंटर वेरिएबल, इट मीन्स आप इसको एक सिंगल क्वांटिटी के रूप में दिखा रहे हो। इसकी वैल्यूज को अनपैक आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए अनपैकिंग करने के लिए यहाँ पर स्टार पॉइंटर लगाया गया। देखिए फन टू ABC। तो यहाँ पर सिंपल A की वैल्यू 2, B की वैल्यू A की वैल्यू 1, B की 2 और C की 3 प्रिंट हो जाएगी। इसी तरीके से KBS A की K हो जाएगी। लेकिन जब आप डिक्शनरी उसको दे रहे हो आर्गुमेंट में, डिक्शनरी को भी अनपैक करना पड़ेगा। तो डिक्शनरी को अगर आप सिंगल स्टार से अगर अनपैक करेंगे तो ये वैल्यूज कीज को मेंशन करेगा, और अगर आप डबल से कर रहे हो तो डिक्शनरी की वैल्यूज, डिक्शनरी की कीज कौन सी है, C B और A, और वैल्यूज हैं 10 11 12। तो इसके कंडीशन के आउटपुट में देखिए डिक्शनरी आपका C B A आएगा। तो इट मीन्स A की वैल्यू हो गई C, B की वैल्यू हो गई B और C की वैल्यू हो गई A। तो जब हम ABC प्रिंट करा रहे हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, CB A आएगा, क्योंकि देखो A की वैल्यू जो है वो C से रिप्लेस हो रही है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हमने किया तो यहाँ पर CBA आ रहा है। ओके, और इसी तरीके से वैल्यूज में हम कर रहे हैं। तो वैल्यूज के अंदर देखिए आप C की वैल्यू आप 10 पास कर रहे हैं, B की वैल्यू आप 11 पास कर रहे हैं, A की वैल्यू 12। तो 12 11 और 10, दैट इज 12 11 10 आ रहा है आपका। तो ये कुछ कंसेप्ट हैं हमारे, क्योंकि एक्चुअली फर्स्ट आर्गूमेंट A और आपका फर्स्ट आर्गूमेंट C है, तो A C को मैच कर रहा है और B जो है B को मैच कर रहा है और C जो है A को मैच कर रहा है। और वैल्यूज में जो आप ले रहे हैं तो A 10 को मैच कर रहा है, B की वैल्यू 11 रख रहा है और C की वैल्यू 12 रख रहा है। जब हम वैल्यूज में मैच कर रहे हैं तो यहाँ पर A की वैल्यू 10 और जो B है, B डिक्शनरी वैल्यूज के अंदर, नहीं सॉरी, जब हम नाम ही दिया हुआ है, क्योंकि A की वैल्यू यहाँ पर 12 दी हुई है, B की वैल्यू यहाँ पे 11 दी हुई है और C की वैल्यू 10 दी हुई है। तो ABC प्रिंट होगा तो दैट इज 12 11 और 10 आ रहा है, क्योंकि जब आपको आर्गुमेंट दिया हुआ है ABC तो ABC ही लेगा। ठीक है, इसके बाद एक कंसेप्ट है हमारा कि अब अगर आप इफ एल्स को यूज करना चाहते हैं, किस तरीके से हम इफ एल्स या टर्नरी ऑपरेटर्स को हमारे फंक्शन में शो कर सकते हैं। देखिए ये एक एरिया फंक्शन है जिसमें हम रेक्टेंगल का एरिया निकाला है, पेरीमीटर में पेरीमीटर निकालिए, LB एंटर करा के एरिया इज LB इफ L मोड 2। अगर आपकी लेंथ जो है 2 के मोड से 0 है तो आपका निकलेगा एरिया, और अगर आपकी लेंथ मोड 2 0 नहीं है तो आपका निकलेगा पेरीमीटर। तो सिंपल, अगर इसको अगर हम कंसेप्ट देखें तो देखिए आपने लेंथ दी 5 रेक्टेंगल की और ब्रीथ दी 10, it's not divisible by 2, so it will calculate perimeter. Here perimeter is calculated, that is equal to 30. Next concept is हमारा concept number 5। concept number 5 है random functions को। देखिए random function क्या करता है कि जैसे आपने लिखा rand int 03, तो 0 से लेके 3 तक कोई भी वैल्यू आपको दे सकता है। ठीक है, प्रिंट पिक, पिक के अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है, 0 1 2 3 4 वैल्यू आ सकती है। ठीक है, सिटी एक आपकी लिस्ट है और INCT किया तो सबसे पहले I की वैल्यू होगी दिल्ली, फिर मुंबई, फिर चेन्नई, देन कोलकाता। एंड J इन रेंज 1 पिक। देखिए जब पिक की वैल्यू 0 है तो J लूप नहीं चलेगा। When the pick value is 1, then again this J1 loop will not execute. And if the value of pick is 2, then it will run once. Because its value is 1 and pick value is 2, then this loop will execute in सिंगल टाइम्स। सिंगल टाइम्स इट मीन्स तो ये आई की वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, तो हमारे पास आएगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। लेकिन जब पिक की वैल्यू मान लीजिए 2 आ रही है तो ये लूप 2 बार चलेगा, एक बार जे की वैल्यू 1 के लिए और एक बार जे की वैल्यू
2 के लिए जब पिक की वैल्यू 3 आ रही है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, अगेन वी आर स्टार्टिंग दिस एग्जांपल as interruption was occurred in previous video. Okay, so again see the concept number 5, and here rand int means it will produce values 0 1 2 3, 4 values. Pick value may be 0 1 2 3, any 4 values. Okay, then again city is a list, and I in city, the I in cities, it will take values Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata alternate wise, number wise. And J in range one pick. If the pick value is 0, this J loop will not execute, as we know. If the pick value is 1, again J loop will not execute. If the pick value is 2, then it will execute single times and it will print I. That is, our output will be equal to Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata in a serial way. And again pick value is 3, and when the pick value is 3, then it will run 2 times. This J loop will run 2 times. So I and I, the I value will be printed twice, then Delhi Delhi, again Mumbai Mumbai, and Chennai Chennai and Kolkata Kolkata. Let's see this example. Yeah, here pick value is coming 1. When the value is coming 1, it will not print any value. It's a random number. It can give any value. Suppose we are running that program again, and this one, and again our the values are, enter the length. We have given length as 5 and breadth as 10. And now let's see, it is taking pick value as 3. When it is taking value as 3, then it is printing Delhi Delhi, Mumbai Mumbai, Chennai Chennai and Kolkata Kolkata. So that's the concept. When the pick value is 3, it is giving output. When the pick value is 2, again it is giving output. When the pick value is 0 and 1, it is not giving any output here. Now the last concept is dictionary. Dictionary, we know this is a dictionary. It's a keys, role and class. These are the values 11 and 2. We are printing simply calling function D. The dictionary is a mutable data types. When we are changing value in the function calling, it will reflect, and when we'll come out, we will come out from the function and we will print the dictionary contents or dictionary. It will show its change values. Okay. तो देखिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने डिक्शनरी दी, यहाँ पे आई इन डी. तो व्हेन वी आर गिविंग स्टेटमेंट आई इन डी, तो आई फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू क्लास, आई टेक्स कीज इन डिक्शनरी. तो आई की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, क्लास, और आई की सेकंड वैल्यू होगी रोल. एंड वी आर प्रिंटिंग कीज आर आई, दैट इज ए क्लास, एंड वैल्यू को जब भी प्रिंट करना है तो डिक्शनरी, देन इंडेक्स में उसकी कीज. तो डी आई विल शो 11, एंड अगेन आई वैल्यू इज roll, and again output will be roll and 2, and we are changing values. Di is equal to di plus 1, so that's 11 is changed to 12 and 2 is changed to 3. And dictionary is a mutable data types. तो mutable data types से तो क्या होगा कि जब फंक्शन से जब कॉल करके आप बाहर आ रहे हो तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जब फंक्शन से बाहर आके आप आ रहे हो, डिक्शनरी को प्रिंट करा रहे हो, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होंगी आपकी, चेंज हो जाएगी. लेट्स सी इसका एग्जांपल देखिए आप. यहाँ पर आपकी प्रिंट हुआ, ये इसकी कीज आई क्लास, ये इसकी वैल्यू आई, कीज आई, वैल्यू आई, डिक्शनरी कंटेंट आफ्टर कॉलिंग. जो 11 था वो 12 हो गया और जो 2 था वो 3 हो गया. तो ये सिंपल कंसेप्ट है. तो हमारे बेसिकली इसी तरीके के आउटपुट क्विज क्वेश्चन होते हैं. कंसेप्ट अगर आप समझ रहे हैं तो आप ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ग्लोबल था. जब भी अगर लोकल ग्लोबल सेम नाम से आपने डिक्लेयर किए हैं और आपको डिफरेंशिएट करना है लोकल की वैल्यू में और ग्लोबल की वैल्यू में, तो आप लिखेंगे ग्लोबल्स. ठीक है, और फंक्शन कॉलिंग होने के बाद आपका ए की वैल्यू, ए तो आपका ग्लोबल कहीं आपने बनाया नहीं तो इसलिए उसकी वैल्यू 10 ही आई थी, और बी जो था वो ग्लोबल यहाँ पे जो हुआ था चेंज हुई थी तो इसकी वैल्यू. लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पर बी की वैल्यू जो है आपकी 15 क्यों नहीं आई, आपकी बी की वैल्यू यहाँ पर 10 क्यों आई है, दिस वन इज 10 क्यों आई है. इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर कहीं भी हमने बी के पास आउट नहीं किया आर्ग्यूमेंट में, तो बी की स्टार्टिंग वैल्यू ये 0 ले रहा है. लेकिन चूंकि ग्लोबल बनाया है तो उसकी वैल्यू को यहाँ पे 5 लेके यहाँ पे 15 दे रहा है. अनपैकिंग
सिंपल। आपने पूरी पूरी लिस्ट दे दी है, यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया, तो यहाँ पर अनपैकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए विदाउट अनपैकिंग आ गया। लेकिन जब आपने लिस्ट और डिक्शनरी की स्ट्रिंग को क्लियरली नहीं दिया, आपने स्ट्रिंग लगा के पॉइंटर वेरिएबल बना के दिया है, इट मीन्स सिंगल वेरिएबल में आप कंटेंट्स को स्टोर कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी अनपैकिंग करनी पड़ेगी। तो आपने अनपैकिंग किया और सिंगल डिक्शनरी लगाओगे तो ये कीज़ को दे रहा है और ये डबल पे ये वैल्यूज़ को दे रहा है आपका। इस तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ प्रिंट के साथ अपने इफ एल्स लगाया है। अगर कंडीशन ट्रू है तो एरिया और कंडीशन फॉल्स है तो पेरीमीटर। रैंड आईएनटी अभी आपको बताया ही है कि ये फंक्शन देगा 0 से 3 तक वैल्यूज़ देगा। तो आप जे आई चला रहे हो, जे उसके अंदर चला रहे हो, जे में आप 1 से 0 रहेगा कुछ नहीं चलेगा, 1 से 1 पे भी जे लूप नहीं चलेगा, 1 से 2 पे एक बार चलेगा, तो 1 से 3 अगर होगा तो ये 2 बार चलेगा, 1 और 2 के लिए। ठीक है, क्योंकि रेंज फंक्शन क्या करता है, एक कम लेता है। अगर यहाँ 3 है तो ये 1 से 1 चलेगा और 1 से 2 तक चलेगा। ठीक है, इसके बाद डिक्शनरी कंटेंट से अगर आपको कीज को प्रिंट कराना तो सिंपल आई, और वैल्यूज को प्रिंट आना तो डी आई वैल्यूज चेंज कर रहे, डिक्शनरी इज इम्यूटेबल। So after calling function, when you are printing dictionary, then it will show its a change value. So that's all for today's session. We will meet again with another new concept. So just keep on your study. Okay.